Jai Hind everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about land breeze, sea breeze, then after we have discussed about the evaporation and condensation. In today's lecture, we are going to discuss about some other concepts of water. We were discussing about the water only, we were discussing about the evaporation, the state of change of water in water vapor. Then after we have also discussed how the clouds are formed. These things we have discussed, and today's lecture we are going to discuss about some other concept of water. So students, we have discussed about the hail, frost and snow. Hail is the condensed form of water vapor in the form of small snow like particles which are falling down during the rain. So this is hail. ओले पड़ना या पत्थर पड़ना जो कहते हैं, बर्फ जैसे कि बारिश कह सकते हो आप, that is hail. Frost, I have already told you that during winter or during cold season in hilly areas, the water vapor or the dew when fall on the plant, it get freezed और वो बर्फ जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं. नाउ द थर्ड वन इज स्नो. स्नो जो बर्फ होती है, जो चट्टान बर्फ की फॉर्म होती है, दैट इज स्नो. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीवन, जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो. Now today we are going to discuss about the purification of water. Water becomes polluted due to mud, sand particles, waste from factories and sewage. Yes, our water which is present on our earth is getting polluted. Day by day it is getting polluted because of mud, मिट्टी के वजह से, because of sand particle, बालू के particle के वजह से, बिकॉज ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके द्वारा, और द सीवेज, जो सीवेज वॉशरूम वाला जो वाटर होता है, जो टैंक होते हैं आपके घर में, उस वो जो वाटर होता है दैट इज सीवेज. A variety of germs can grow in such water. What happened if water is getting polluted? What happened? It is polluted by mud, sand particle, waste, sewage and waste from factories. All these things are responsible for the pollution of water. But what happened when this water is getting polluted? Many of the germs grow in this water. Many germs can grow in this water, this polluted water, and that water is unfit for drinking. It is not good for drinking. If you are drinking polluted water, you can be diseased, you can caught by disease. So what happened, drinking polluted water can make a person ill. Yes, polluted water या गंदा पानी पीने से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है. Polluted water can cause diseases like typhoid, cholera, jaundice and diarrhea. अगर कोई व्यक्ति है जो polluted water पी रहा है, अनफिट वाटर पी रहा है, तो उसको टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस या डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है. वी कैन प्यूरिफाई पॉल्यूटेड वाटर इन मैनी वेज. वी कैन purify the water in different ways. We can pollute the water, we can purify the polluted water in different ways. The first way is boiling. First condition is boiling. The simplest way of purifying water is boiling. जो सबसे आसान तरीका है पानी को प्यूरिफाई करने का, दैट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 minutes kills the germs in it. If you are boiling water for 10 minutes, the germs can be killed. Boiled water should be covered and stored in a clean pot. If there is a polluted water and you are boiling it for 10 minutes, after that just filter it and store in a clean pot. You should store in a clean pot. Now the second step is sedimentation. Sedimentation, that means जो पानी में जो मोटे पत्थर जैसे चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दें या उनको आप नीचे सेटल होने दें. जैसे अगर पानी में मिट्टी है
या बालू है या बड़े बड़े पत्थर कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, तो वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में। सो द सेकेंड मेथड इज सेडिमेंटेशन। तो वो जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते हैं वो नीचे जो बैठ जाते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का नीचे बैठ जाना, दैट इज सेडिमेंटेशन। ओके, पुट सम मड इन अ बीकर ऑफ वाटर एंड डू नॉट डिस्टर्ब द मिक्सचर। व्हाट यू हैव टू डू, पुट सम मड, कुछ मिट्टी को आप लेंगे और पानी में एक बीकर लीजिए। बीकर ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, दैट इज बीकर जिसमें पानी रखा है। तो कह रहा है कि बीकर में पानी लीजिए और थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। नाउ डू नॉट डिस्टर्ब द वाटर, कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी शेक नहीं करना है, सिर्फ उसको उसी हालत में छोड़ देना है। लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम लेट इट स्टैंड। नाउ व्हाट यू विल सी दैट मड, दैट मिट्टी जो है, दैट विल सेटल डाउन इन द बीकर। उस बीकर में, उस बर्तन में वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। द इम्प्योरिटीज आर नाउ एट द बॉटम एंड द अपर लेयर ऑफ वाटर इज क्लियर। तो होता क्या है, जो भारी भरकम जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी में नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर पानी साफ रहता है। उसको आप बचा करके उसको आप दूसरे पैन में गिरा सकते हैं और नीचे वाली इम्प्योरिटीज़ को फेंक सकते हैं। The impurities are now at the bottom and the upper layer of the water is clear. This process of settling down of impurities is called sedimentation. यही प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम पानी में जो भारी भरकम चीज़ें हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी हैं, जो नीचे सेटल डाउन हो जा रही हैं, उनको हम, उन्हीं जो इम्प्योरिटीज़ जो सेटल डाउन हो जा रही हैं, उनको आप इसी जो आप कर रहे हैं फिर बाद में आप उसको फेंक दे रहे हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। बट रिमेंबर, ड्रिंकिंग दिस वाटर में नॉट बी सेफ। यस, अगर कोई भी पानी है जिसमें हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं और आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, वो नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ गई और पानी को अलग से कर लिया और नीचे वाली इम्प्योरिटीज़ को फेंक दिया, लेकिन अभी भी वो पानी आपके पीने लायक नहीं है, उसको भी आपको साफ़ करना होगा। आप क्लोरीन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप वो इम्प्योरिटीज़ जो है उसकी ख़त्म हो जाएंगे और फिर बाद में आप उसको छान के पी सकते हैं। ओके, now the fourth condition is decantation. The fourth condition is decantation and the fifth one is filtration. Last sixth one is chlorination. Now we are going to discuss all these three. After sedimentation, when all the mud settle down at the bottom of the vessel, clean water is carefully poured into another vessel without disturbing the sediment. This is called decantation, but remember, drinking this water may not be safe. फर्स्ट था सेडिमेंटेशन, जिसमें आपने जो पानी में घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एज इट इज छोड़ दिया। हुआ क्या, जो भारी चीज़ें थी, जो भारी इम्प्योरिटीज़ थी, वो नीचे के साइड जो बर्तन था उसमें नीचे बैठ गई और इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा गया। फर्दर आपने क्या किया, आपने जो पानी था, जो ऊपर साफ पानी था और जो नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठी हुई थी, उस पैन को आपने दूसरे बर्तन में खाली कर दिया। तो जो पानी था सिर्फ उसको आपने दूसरे बर्तन में गिराया। तो ये सेडिमेंटेशन वाला जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में जो आपने रख दिया, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज डीकेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम डीकेंटेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपने क्या किया, आपने डीकेंटेशन तो किया, सेडिमेंटेशन एक बर्तन में था, नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ गई थी, यहाँ पर बैठी हुई हैं और ऊपर का पानी साफ़ है इतना। तो आपने क्या किया, आपने इस पानी को दूसरे बर्तन में डाला। जब आपने दूसरे बर्तन में पानी को डाला, नीचे वाली इम्प्योरिटीज़ को छोड़ दिया और दूसरे बर्तन में जब डाला, तो आपने क्या किया, छन्नी यूज़ किया। छन्नी यूज़ किया, जो चाय छानने के लिए छन्नी होती है, तो क्या करती है, चाय की पत्ती को ऐसे रोक के रखती ना, उसी तरीके से आपने छन्नी को यूज़ किया। जब इस बर्तन से आप ऐसे पानी गिरा रहे थे तो आपने छन्नी को यूज़ किया, दैट इज द फिल्ट्रेशन। आपने डीकेंटेशन किया, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में खाली किया, लेकिन साथ में आपने क्या किया, छन्नी का उपयोग किया। जैसे चाय बन रही थी, चाय में चाय की पत्ती, अदरक, बहुत सारी चीज़ें, इलायची वगैरह आपने डाला हुआ था। बाद में उसी चाय को आप क्या कर रहे हो, अभी चाय में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स है जिसको आप नहीं पी सकते हो, तो आपने क्या किया, कप रखा और बड़े बर्तन जिसमें चाय बनाया, छन्नी रखी और दूसरे बर्तन में उस चाय को छाना, तो बीच में आपने छन्नी यूज़ किया, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। लेकिन बड़े बर्तन, चाय वाले बर्तन से आपने छोटे बर्तन में जो डाला,
चाय, तो वो क्या किया आपने, बड़े से छोटे में ट्रांसफर किया, दैट इज डिकेंटेशन। और फिल्ट्रेशन मतलब आपने छन्नी का यूज किया, दैट इज फिल्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज अ गैस दैट किल्स जर्म्स। क्लोरीन एक ऐसी गैस है, क्लोरीन की टैबलेट भी आती है, ये एक ऐसी गैस है जो जर्म्स को किल करती है। नाउ क्लोरीन टैबलेट्स आर यूज्ड इन वाटर टू किल जर्म्स। यस, क्लोरीन टैबलेट को यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा जो जर्म्स हैं उनको किल किया जाए, और जब जर्म्स किल हो जाएंगे तो वो वाटर जो है दैट विल बी प्योर, वो प्योर हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। एक काम और आप कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, जिससे वो पानी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसमें जर्म्स हैं, वो मर जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, so we have discussed about sedimentation, then decantation, filtration and chlorination. Now tips to handle water. What are the tips to handle water? पानी के बचाव के लिए, पानी के रख रखाव के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, now the first tip is water is very precious, do not waste it. Yes, water is very precious. It is one of the natural resource which is useful for us. So it is very precious and we should not waste it. Okay. Second condition is keep water in clean vessel which are covered. The water which is present, you should keep this water safe in a closed, in a clean vessel, so that no impurities can be transferred from the atmosphere into the water. So you should keep the vessel clean. Do not keep drinking water near bin and drain. जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डस्टबिन के पास या नाली के पास नहीं रखना चाहिए। ओके, क्लीन द स्टोरेज पॉट एंड यूटेंसिल्स रेगुलरली बिफोर फिलिंग देम विथ वाटर। जो स्टोरेज करने के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए जो पॉट है या कैंपर है या आप कह सकते हो बॉटल है या जो भी बर्तन है जिसमें आप पानी रखते हो, उनको बार बार साफ़ करते रहना चाहिए, उनको अच्छे से सफाई करनी चाहिए। पानी भरने के पहले उनको एक बार ज़रूर धोना चाहिए। ओके, नाउ द फिफ्थ कंडीशन इज वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो आपके घर में टंकी लगी होती है वो समय समय पर साफ़ होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें जर्म्स जर्मिनेट हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे और वो बाद में आपके लिए हानिकारक बन सकते हैं। नाउ here we have completed this chapter and I will share the exercises of the chapter in the next lecture from only tomorrow. Tomorrow I will share all these exercises. That's all for today, guys. But we are having some new terms. So let us consider all those terms also. First word is weather. What is weather? Condition of sun, air, rain and cloud of a place at a particular time. If you will discuss about weather, if anyone is asking about weather, what you will say? It is a condition. It is a condition of sun, air, rain and cloud of a place. किसी एक particular place में जो sun rays हैं, जो air है, जो rain है, जो cloud है, उनकी क्या condition है, उसी को हम weather के नाम से जानते हैं। Now the second term is sedimentation. Sedimentation मतलब settling down of impurities. The process of settling down of impurities at the bottom. Yes, in any beaker or in any container, if the impurities got settled down in that particular pan, in that particular beaker, that is called as sedimentation. Now the filtration, the process by which water is filtered through filter utensil or through filter paper or through filtering techniques, that is called as filtration. So that's all for today, guys. Thank you everyone.